Hello, my dear disciples. Hope you are feeling healthy life at your home. Today, once again, here I am Garima Sharma in front of you, and today I brought a video based on poem number 4 of your ninth class NCERT book Beehive, and the name of the poem is The Lake Isle of Innisfree, that is penned down by a very famous Irish poet who was a dramatist also, a playwright also. The name of the poet is W.B. Yeats. The full form of the name is William Butler Yeats. I hope you all must have listened, you all must have heard about this famous poet. So let's start this poem. I hope you all are going to enjoy this poem definitely. So as this is poem number 4, as I told you, the name of the poem is The Lake Isle of Innisfree. As that is cleared by the name The Lake Isle, that means झीलों का वो island, island से word बना है short में isle. The Lake Isle of Innisfree. Innisfree is a small place, a small coast area in the country of Sligo. Okay, वहाँ पे एक छोटा सा आयल, एक इनिस्फ्री नाम की जगह जो कि कहाँ पे है, एक स्मॉल प्लेस है, स्मॉल कोस्ट एरिया है जो स्लीगो कंट्री में है. आई होप कि मोस्ट ऑफ आर अनअवेयर अबाउट दिस प्लेस. तो वहाँ पे ज़्यादा लोग रहते नहीं हैं, जस्ट लाइक अ विजिटिंग प्लेस. तो यहाँ पे जो पॉइंट है वो अपने बचपन में घूमने जाया करते थे. नॉर्मली वो अपनी वेकेशंस वहाँ पे स्पेंड करते थे, और तब से ये प्लेस उनको इतना सुकून देता था कि वो बड़े होके भी इस प्लेस पे बार बार जाने के लिए मतलब कि सोचते हैं, उनकी विश होती है. वाई ही वॉज जस्ट विशिंग टू गो एट दिस प्लेस अगेन एंड अगेन. द रीज़न बिहाइंड इज that there he feels lots of, you can say, peace and calm. Just like in nowadays we are just busy in our daily life, and we all are having a hectic schedule. So in this schedule we are just thinking to get a little bit pause. So थोड़ा सा पॉज लेके हम चाहते हैं अपने मन को शांति दे, सुकून दें. तो ऐसा ही जो पॉइंट है यहाँ पे, वो चाहते थे कि वो ये दिन भर के थकान, दिन भर के ये जो स्पेशली जो सिविलाइजेशन है, यहाँ पे देखा होगा आपने रूरल एरिया में शांति रहती है, जबकि जो ये आपका अर्बन एरिया है, जो सिटी एरिया होता है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा शोर शराबा और हेक्टिक लाइफ रहती है. तो वहाँ से उन सबसे वो दूर होके कहाँ जाना चाहता है, पॉइंट लेक आइल ऑफ इनिस्फ्री पे, जहाँ पे वो बचपन में मोस्टली जाया करता था. सो यू कैन सी हियर कि मैंने एक टाइटल में ही आपको पूरा यहाँ पे आधे से ज़्यादा समरी इसकी एक जो सिग्निफिकेंस है टाइटल का वो आपको बता दिया है. सो लेट्स स्टार्ट. आई होप कि आगे आपको इजीली समझ में आ जाएगा. As in my next slide, as I told and I described always that I always prepare content, so that what is the use of the contents. With the help of the contents we are just aware that how many things we are just going to study, how many things we are just going to get via this video, so that we can get easily that there are 4 or 5 items, 4 or 5 things that we are just going to study in this poem. So let's see how many points, how many you can say points I prepared here that we are just going to study about this poem. First is about the poet, that we are just going to study about the poet. Then theme and central idea. I just mentioned, I gave the same name of both the things. The reason is that थीम एंड सेंट्रल आइडिया यहाँ पे दोनों एक तरह से सेम ही काम कर रहे हैं. वैसे दोनों अलग ही आप इनको, दैट मीन्स देयर इज अ डिफरेंस, बट यहाँ पे मैंने दोनों को एक ही ले लिया है. At the very next thing, we are just going to study about the poem. Poem in the sense, here in the whole video we are just going to study about the poem. But in this third point, we are just going to study, we are just going to explain, we are just going to get the sense line wise meaning of the poem. Then summary of the poem, then poetic or you can say literary devices, and then vocabulary. So let's start. At very first I told you about the poet. So here you can see, my dear students, this is the portrait of William Butler Yeats. This is the pronunciation of Yeats, not yeast. Okay, it's Yeats. So here you can get about the biography of Mr. Yeats. Born, that means he was born on June 13, 1865 at the place Sandymount, that is situated in Ireland. As he was an Irish poet,
So that place is situated in Ireland. Then he dies at Jan 18, 1939 in France. I think he was admitted in an hospital because his condition was going critical. So he took his last breath in a hospital. So I didn't mention here the name of the hospital. I hope if you remember the that place, that is enough for you, my dear students. Then education. Though he got his education, though he completed his education at many colleges, but here I mention the famous college, and the name of the college is National College of Art and Design. Okay. Then he mentioned he wrote many poem. He wrote thousands of poem. Here I just described. I just mentioned some poem. The first poem, that means the series of the poem is the second coming. Then Lake Isle of Innisfree, that we are just going to study about this poem. Then Sailing of Byzantium. Then Easter, I hope you must have heard about that is a very famous festival, just like Christmas. Easter is also a Christian festival, etc. Because he just mentioned lots of poems, so I just use the word etc. here, because here I just mention only few famous poems related to him. In next slide, we are just going to study about the theme, or you can say central idea. As I told you, I just mentioned both the things in the same slide, in the single slide. So let's start. The Lake Isle of Innisfree is a place near the coast of Ireland. As I told you, my dear students, ये Lake Isle of Innisfree जो है एक small place है near the coastal of Ireland in Sligo country. एस्ट यूज टू गो देयर, वो वहाँ पे जाया करते थे. यूज टू जब कोई एक पास्ट हैबिट होती है आपकी, तो जब आप उसको लिखते हैं या आप उसको मेंशन करते हैं, उसके बारे में बताते हैं, देन वी आर यूजिंग दिस वर्ड यूज टू. तो एस्ट यूज टू गो देयर इन हिज चाइल्डहुड, अपने बचपन में जाया करते थे. देयर ही फेल्ट द पीस, जहाँ पे उन्हें मतलब कि एक शांति मिलती थी, काम मिलता था ऑफ द नेचर. देखो नॉर्मली यू जस्ट ऑब्जर्व कि वेन एवर वी गो इन अपार और अंडर अ ट्री, इफ वी आर जस्ट सिटिंग अंडर द ट्री, एक यूनिक सी फीलिंग, एक यूनिक सा एक अट्रैक्शन हमें नेचर के साथ होता है. तो हम चाहते हैं कि इसको हम बार बार एंजॉय करते रहें. सो सेम फीलिंग, सेम अट्रैक्शन द पोइट ऑल्सो ही वॉज ऑल्सो हैविंग विद नेचर. सो हेयर ही जस्ट शेयरिंग हिज एक्सपीरियंस विद अस. इन द सेकेंड पॉइंट, वाई दिस पोएम मीन्स कि इस पोएम के माध्यम से East wants to share his experience of childhood and wants to perform some activities in the lap of Mother Nature. वो अपने बचपन का कुछ एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं, जो वो परफॉर्म करते थे कुछ एक्टिविटीज़ वहाँ पे इन द लैप ऑफ मदर नेचर, जो मदर नेचर की लैप में यानी कि उनकी नेचर की गोद में वो किस तरह की एक्टिविटीज़ वहाँ पे परफॉर्म करते थे, वो हमारे साथ वो शेयर कर रहे हैं. और यहाँ पे मदर नेचर स्पेशली लेक आइल ऑफ इनिस्फ्री के लिए ही बताया गया है. Next point, here the poet tries to describe the ignorance of nature due to our hectic life. As my dear students, you must aware about the hectic schedule of the life that we all are busy in our schedule. So we want to get a pause, just like a pause to इस time हम लोगों को मिला हुआ है, just like you can say, but it was unfortunate because we didn't expect such type of pause because of such this pandemic. So ऐसा तो हमने नहीं चाहा था कि पॉज मिले और ऐसा मिले, बट स्टिल वी आर जस्ट सेइंग कि हम घर पे भी हैं बट स्टिल वी आर एक्टिव. तो पॉज तो बस ये है कि घर से बाहर जाने में है, लेकिन एक्टिविटीज़ तो हमारी अभी भी चल रही है. जस्ट वी आर जस्ट गिविंग द ऑनलाइन क्लासेज एंड वी आर जस्ट प्रिपेयरिंग वीडियोज़ फॉर यू माई डियर स्टूडेंट्स. तो डे नाइट वी आर जस्ट डूइंग हार्ड वर्क फॉर यू. बट यहाँ पे इसका मीनिंग क्या है कि पॉइंट जो है, एक हम अपने जब बिजी स्केड्यूल से क्या करते हैं, नेचर को इग्नोर कर देते हैं. ठीक है, तो चाहते हुए भी इग्नोर कर देते हैं. तो यहाँ पे यही बात यहाँ पे पॉइंट ने शेयर किया है. नेक्स्ट पॉइंट, ही वॉन्ट्स टू मैसेज अस टू एन्जॉय द ब्यूटी ऑफ द नेचर. यहाँ पे जो लास्ट में मैसेज दिया गया, क्योंकि थीम क्या होता है, जो संदेश, जो मैसेज, सेंट्रल आइडिया, मुख्य बिंदु जो चैप्टर के हैं या पोम के यहाँ पे हैं. तो ये क्या कहना चाह रहा है पॉइंट यहाँ पे, ही वॉन्ट्स टू मैसेज अस टू एन्जॉय द ब्यूटी ऑफ द नेचर. वो हमें मैसेज देना चाह रहा है कि हमें जो नेचर की ब्यूटी है उसको एंजॉय करना चाहिए. ओके, नेक्स्ट स्लाइड. I didn't switch on my fan just because of the sound, so that's why I'm feeling a little bit, and I'm just perspiring. So in next slide, the Lake Isle of Innisfree. Here we are just going to describe. Here I'm going to explain the single line
That means word wise all the points I'm just going to clear you. I will arise and go now. मैं I will arise. I'll arise का मतलब है मैं फिर से उठूंगा और go. उठने का यहाँ पे मतलब है फिर से एक डिसीजन ले लिया है कि मैं जाऊंगा कहाँ पे एंड गो टू इनिसफ्री. मैं इनिसफ्री जो प्लेस है वहाँ पे जाऊंगा. एंड अ स्मॉल कैबिन बिल्ड देयर. और एक छोटा सा कैबिन बनाऊंगा ऑफ क्ले जो मिट्टी का होगा. एंड वेटल्स मेड. वेटल्स होता है ट्विस्टेड स्टिक्स होती है, मुड़ी हुई जो स्टिक्स होती है नॉर्मली जैसे गांव में छप्पर वगैरह बनाते हैं या कुछ भी हम क्ले का जैसे कैबिन यहाँ पे इसने बात की है पॉइंट ने. तो उसको बनाने में एक सपोर्टर्स का काम करेंगी जो ये वॉलेट्स की वेटल्स की जो ये स्टिक्स हों. ठीक है. 9 बीज बीन रोज विल आई हैव देयर. वहाँ पे मैं खेती करूँगा, एक गार्डन बनाऊँगा अपना क्योंकि मैं शहर से हट के अलग वहाँ पे जाना चाहता हूँ. तो वहाँ पे कोई मेरा बिजनेस तो ऐसा नहीं है. तो मैं 9 बीज जो हैं वो वहाँ पे जो बीन्स होती हैं आपने देखा होगा जो फली होती हैं उनको बोलते हैं, उनकी खेती करूँगा. अ हाइव ऑफ द हनी बीज. और क्योंकि मुझे भूख लगेगी तो मैं वहाँ पे अपनी बीन्स की खेती भी करूँगा. और हनी जो बीज होती हैं आपको मालूम होगा जस्ट लाइक द नेम ऑफ योर बुक बिहाइव. बिहाइव होता है मधुमक्खियों का छत्ता. यहाँ पे शॉर्ट में हाइव बोल दिया है. ठीक है. तो हाइव बिहाइव सेम थिंग है दोनों. हाइव ऑफ द हनी बीज. तो एक उनके लिए मैं मधुमक्खियों का एक छत्ता भी बनाऊंगा जिसमें मैं वहाँ से शहद भी लिया करूँगा और अपना पेट भरा करूँगा. एंड लिव अलोन इन द बी लाउड ग्लेड. और वहाँ पे रहूँगा अकेला, कोई मुझे डिस्टर्ब करने वाला नहीं होगा. इन द बी लाउड जो उनका बजिंग साउंड होता है मधुमक्खियों का. ग्लेड होता है ओपन एरिया. उस खुले आसमान में जहाँ पे मधुमक्खियों का बजिंग साउंड मुझे सुनाई आएगा वहाँ पे मैं अकेला रह के उस लाइफ को एंजॉय करूँगा. ठीक है. नेक्स्ट स्टेंजा. एंड आई शेल हैव सम पीस देयर. और मुझे यकीन है मुझे कुछ पीस वहाँ पे 100% यानी ज़रूर मिलेगी. फॉर पीस. अब पीस की बात करें तो पीस कम्स ड्रॉपिंग स्लो. अब एकदम से तो पीस नहीं आएगी, धीरे धीरे पीस आएगी. जो शांति है वो धीरे धीरे आएगी. ड्रॉपिंग फ्रॉम द व्हील्स ऑफ द मॉर्निंग टू वेयर द क्रिकेट सिंग्स. ड्रॉपिंग फ्रॉम द व्हील कि जब दिन निकलता है सूरज आता है तो जैसे ही जो अंधेरा छाया रहता है रात में तो जब सूरज निकलने से वो पूरा अंधेरा हट जाता है. जैसे कि एक मॉर्निंग को यहाँ पे कंपेयर एक लिविंग पर्सन की तरह कंपेयर किया. जैसे कि फीमेल वेल होता है घूंघट जो होता है. जैसे कि फीमेल क्या करते हैं अपने घूंघट को जैसे जो गांव में देखा होगा नॉर्मली घूंघट रखते हैं तो घूंघट के पीछे वो अपने फेस को कवर रखते हैं. तो यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि जब सूरज निकलता है तो जो अंधेरा होता है जैसे कि घूंघट हट गया हो और इस तरीके से जो मॉर्निंग का उजाला है वो आ जाता है. और टू वेयर द क्रिकेट सिंग्स. और जहाँ पे क्रिकेट होते हैं ये आपकी ग्रासोफर की फैमिली का इंसेक्ट है. तो हिंदी में आई थिंक मंजीरा बोलते हैं. आपने इसका साउंड भी सुना होगा. स्पेशली बारिश के टाइम में इसका साउंड सुनाई देता है. पूरी रात भर शोर इसका आता रहता है. नॉर्मली जो फील्ड्स होते हैं खेतों में इसका ज़्यादा आवाज़ आती है. ठीक है. नॉर्मली सिटी में तो कम सुनने को मिलता है. तो जहाँ पे जस्ट लाइक कि वाटर एरिया होता है और खेती जहाँ होती है तो वहाँ पे इसका साउंड आपको सुनने को मिलेगा. देयर मिडनाइट्स ऑल अ ग्लिमर. देयर मिडनाइट. और मिडनाइट यानी कि रात को क्योंकि पॉइंट यहाँ पे बाहर सो रहा है तो रात को जब वो बाहर सो रहा है तो वहाँ पे मिडनाइट यानी कि आसमान में ऑल ग्लिमर. ग्लिमर होता है चमकना किसी चीज़ का. ठीक है. तो यहाँ पे जो स्पार्किंग है किस चीज़ के चमकने की बात हो रही है. आई डेफिनेटली यहाँ पे स्टार से चमकेंगे मिडनाइट में. एंड नून अ पर्पल ग्लो. और नून को पर्पल ग्लो यानी कि जब आपने देखा होगा नून में जैसे सनशाइन बहुत ज़्यादा हो जाती है तो उसको पर्पल ग्लो जो उसका दिखेगा इस तरह से नून को पर्पल ग्लो जो उसका है पर्पल कलर का दिखाई देगा. उससे कंपेयर किया गया है. तो यहाँ पे आप यू कैन से की जो मेटाफर भी यूज़ हो रहा है यहाँ पे. एंड इवनिंग फुल ऑफ द लिनेट्स विंग. और जो इवनिंग होगी वो लिनेट्स एक स्मॉल ग्रे कलर का बर्ड होता है उसके विंग्स यानी आसमान में लिनेट्स बर्ड मुझे दिखाई देंगे. और इस तरीके से मैं उस पूरे नेचर को एंजॉय करूँगा. पूरा डे टू नाइट यानी मैं सारी चीज़ों को एंजॉय करूँगा. धीरे धीरे पीस जो है वो आएगी. मॉर्निंग में जो बर्ड्स का साउंड है उनसे लेके नाइट तक तारों के टिमटिमाने तक मैं पूरा उस जो पीस क्रिएट होगी वहाँ पे उसको एंजॉय करूँगा. एंड इवनिंग फुल ऑफ द लिनेट्स विंग ये हो गया है. देन थर्ड स्टेंजा. आई विल अराइज एंड गो नाउ. फिर बोलता है कि मैं फिर से डिसाइड करूँगा और मैं फिर से जाऊँगा. फॉर ऑलवेज नाइट एंड डे. हमेशा मैं दिन और रात वहीं पे रहना चाहूँगा. आई हेयर लेक वाटर. जहाँ पे मैं सुनता हूँ लेक वाटर लैपिंग. देखो क्योंकि लेक अब आया है यहाँ पे कि वो जो लेक वाटर है उसका जो साउंड है लैपिंग होता है. जो जब वो अपने शोर्स होते हैं जो उसके किनारे होते हैं बैंक्स होते हैं उस पर जब वो टकराता है पानी जो लहरें टकराती हैं तो उनका जो आवाज़ होती है स्ट्राइकिंग जो उनका साउंड होता है उसको लैपिंग बोला है.
लैपिंग विद लो साउंड्स बाय द शोर, धीरे धीरे पानी के जो लहरों के टकराने की आवाज़ उसको एंजॉय करूँगा। वाइल आई स्टैंड ऑन द रोडवे, और ये आवाज़ मुझे तब भी आएगी जब मैं रोडवे यानी कि जब मैं चाहे सिटी में हूँ या मैं कहीं यानी कि इस जगह से जब मैं बाहर भी आ जाऊँगा, तो ये जो साउंड है ये मुझे अपनी तरफ खींचेगा और मैं बार बार उस साउंड की तरफ जाने की कोशिश करूँगा। मेरा मन बिल्कुल नहीं करेगा मैं वहाँ से आऊँ, और मैं चाहता हूँ ये साउंड मैं बार बार एंजॉय करूँ। और ऑन द पेमेंट्स ग्रे, पेमेंट जो कंक्रीट की आपकी रोड होती है, यानी जब मैं वहाँ भी आ जाऊँगा बाहर आके भी, यानी कि पेमेंट ग्रे, क्योंकि इस जगह पे तो कंक्रीट की रोड के कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये एक बिल्कुल नेचर का एरिया दिखाया गया है। तो जब मैं शहर में भी आ जाऊँगा तब भी मैं यानी कि पेमेंट ग्रे में आके भी मैं उस ब्यूटी को बार बार एंजॉय करते रहूँगा, मैं अपने दिमाग से नहीं निकाल पाऊँगा। आई हेयर इट इन द डीप हार्ट स्कोर, और बेशक ये आवाज़ मुझे डायरेक्टली सुनाई ना दे, लेकिन मेरे मन के डीप हार्ट कोर होता है, मन की गहराइयों में इसकी गूंज हमेशा सुनाई देती रहेगी, और मैं हमेशा वहाँ पे जाने के लिए रेडी रहूँगा। सो आई होप my dear students you have got the sense of the poem. So now I'm going to explain the summary of this poem. आई होप कि काफ़ी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। दिस पोएम एक्सप्लोर द पोइट्स लॉन्गिंग फॉर द पीस एंड द ट्रैंक्विलिटी ऑफ इनिसफ्री। ठीक है, दिस पोएम एक्सप्लोर द पोइट्स लॉन्गिंग फॉर द, यानी कि उसका काफ़ी टाइम से अटैचमेंट जो है पोइट का उसके साथ एक्सप्लेन कर रही है ये पोएम। द पीस एंड ट्रैंक्विलिटी, ये पीस एंड काम के लिए वर्ड यूज़ किया है। पीस एंड काम जो शांति है, ऑफ इनिसफ्री, इनिसफ्री की जो शांति है वहाँ पे, उसके लिए कितना उसका यानी कि कितना उसका अटैचमेंट है पोइट का, इस पोएम में बताया गया है। अ प्लेस वेयर ही स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम एज अ बॉय, जब वो बॉय थे, बच्चे थे, तब से वो वहाँ पे टाइम स्पेंड कर रहे हैं। ही वॉन्टेड टू गो बैक देयर एंड वॉन्ट टू मेक अ स्मॉल कैबिन, वहाँ पे वो वापस जाना चाहते हैं और वहाँ पे जाके एक छोटा सा कैबिन बनाना चाहते हैं। ऑफ क्ले एंड ट्विस्टेड स्टिक्स, आई एक्सप्लेन दिस पोएम, ये मैंने ये बात क्लियर भी कर दी आपको। फॉर फूड, और खाने के लिए वहाँ पे क्या करना चाहते हैं, 9 रोज, जैसे खेती करते हैं ना, रोज बनाते हैं, रोज यानी जो लाइन होती हैं, क्यारीज होती हैं, वो बनाते हैं, क्यारी बाउंड्रीज करके जो बनाते हैं, तो वहाँ पे 9 रोज वो बीन्स की लगाना चाहते हैं, और हनी भी वहाँ पे मधुमक्खियों का छत्ता उनको बनाने देंगे, जिससे कि उन्हें भी शहद वहाँ पे मिलता रहे। एंड बीज विल मेक बजिंग साउंड्स, और वहाँ पे जो बीज होंगे वो बजिंग साउंड करेंगे अपना। ही विल लाइव अलोन देयर टू एंजॉय द पीस, और वहाँ पे वो ही विल लिव अलोन, अकेले रहेंगे उस पीस को एंजॉय करने के लिए, कि कोई भी वहाँ पे उनको डिस्टर्ब करने वाला बिल्कुल नहीं होगा। पीस विल कम स्लोली फ्रॉम मॉर्निंग टू इवनिंग स्लोली, अब ऐसा नहीं है कि एकदम से आ जाएगी, तो मॉर्निंग से इवनिंग तक धीरे धीरे, यानी कि मॉर्निंग की जब जो मॉर्निंग है वो अपना घूंघट हटाएगी। ठीक है, जैसे कि कोई लिविंग पर्सन हो, तो यहाँ पे आप कह सकते हैं मॉर्निंग को एज अ पर्सोनिफिकेशन, यहाँ पे फिगर ऑफ स्पीच यूज़ की गई है। हैंड टू हैंड इसको भी आप समझ लीजिए, ठीक है, बाद में समझने में आसानी रहेगी। देन द ग्लोइंग सन, शाइनिंग स्टार्स, ले नाइट बर्ड्स इन द स्काई एंड द साउंड ऑफ क्रिकेट सॉन्ग इन द इवनिंग गिव हिम एन इंटेंस पीस, ये सारी जो चीज़ें हैं ये सब मिल के पोइट को एक इंटेंस, यानी कि एक बहुत गहरी और एक बहुत सुकून वाली शांति देती हैं। द साउंड ऑफ द लेक, द साउंड ऑफ लेक वाटर ऑलवेज स्ट्राइक्स इन हिज माइंड, यानी कि जो लेक वाटर का साउंड है हमेशा उसके माइंड में स्ट्राइक कर रहा है, यानी कि बार बार याद आ रहा है। एंड अट्रैक्ट्स हिम टुवर्ड्स द लेक, और लेक की तरफ उसको खींच रहा है। वेदर ही स्टैंड्स ऑन द रोड, चाहे वो रोड पे यहाँ पे मतलब चाहे वो शहर में भी आ जाए, फिर भी वो साउंड उसको अपनी तरफ खींच रहा है। द लैपिंग साउंड्स ऑलवेज अट्रैक्ट्स हिम, तो वो जो लैपिंग साउंड है, लैपिंग साउंड यानी कि जो लहरों का वो जो आवाज़ है, लहरें जो हैं वो वेव्स जो हैं वो किससे टकरा रही हैं, वो बैंक से, शोर से टकरा रही हैं। बैंक और जो शोर है दोनों आपस में सिनोनियम है, तो वो जो आवाज़ है वो उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है। आई होप की समरी भी आपको समझ आ गई होगी डियर स्टूडेंट। नाउ जस्ट मूव टुवर्ड्स द पोएटिक डिवाइसेस। Most of poetic devices I have described during the explanation, so let's study the remaining. As you just pay attention the rhyming scheme A B A B. If you have your book, so you just read the poem, and with the help of this video you can again check the rhyming scheme, because I just want to reduce the time here, so I don't want to restart again to show you. So you can check the rhyming scheme A B A B.
देन एलिट्रेशन, एलिट्रेशन क्या होता है, जब कॉन्सोनेंट साउंड रिपीट होता है तो यहाँ पे हनी बी, जस्ट लाइक हाइव, हनी बी, तो एच एच यहाँ पे रिपीट हो रहा है, एच साउंड इज रिपीटेड एयर, लेक, लैपिंग, लो, ये रिपीट हो रहा है। देन रिपीटेशन, रिपीटेशन भी यहाँ पे किस चीज़ का रिपीटेशन हो रहा है, ये जो लाइन है इसमें पॉइंट ने बार बार बोल रहा है आई विल अराइज एंड गो नाउ इन फर्स्ट एंड थर्ड स्टेंजा, तो ये जो लाइन है इसमें बोली गई है। देन पर्सोनिफिकेशन, आई टोल्ड यू कि मॉर्निंग को यहाँ पे एक मॉर्निंग को पर्सोनिफाइड किया है, जैसे कि कोई वहाँ पे ये एक फीमेल से इसका कंपेयर कर सकते हैं क्योंकि व्हील जो होता है घूंघट फीमेल ही रखती हैं। देन मेटाफर, मेटाफर इसमें ये भी है कि क्लाउड जो है किससे कंपेयर किया गया है, हाँ मॉर्निंग बोल दीजिए, क्लाउड्स बोल दीजिए आप, एक ही बात है क्योंकि पोएम में जो सेंस हम लगा रहे हैं तो वो क्लाउड से भी निकल सकता है क्योंकि जो सन है वो बादलों के पीछे छुपा हुआ है, तो जो व्हील है वो क्लाउड्स है, किसका, मॉर्निंग, जैसे कि मॉर्निंग तो कोई पर्सन है और जो क्लाउड्स है वो उसका व्हील है, ठीक है, ये आप इसको कह सकते हैं। देन इन द लास्ट आई एम जस्ट गोइंग टू टेल यू द vocabulary. There are some words I just mentioned here with meanings. First, as I told you, arise, stand up. Then cabin, एक छोटा सा रूम जो होता है, you must have heard it in just like ये ऑफिस में होता है cabin. वेटल्स आपका ट्विस्टेड स्टिक्स होती हैं जो वॉल्स वगैरह बनाने के काम आती हैं। ग्लेड आपका ओपन प्लेस। बी लाउड, बीज, बी लाउड होता है जो मधुमक्खियों का बजिंग साउंड होता है उसको बोला है। व्हील आपका आई जस्ट टोल्ड यू अ पीस ऑफ क्लॉथ जिसको फीमेल्स अपने फेस को कवर करने के लिए यूज़ करती हैं। क्रिकेट यहाँ पे इंसेक्ट रिलेटेड टू द ग्रासोफर, उसी की फैमिली से है। लिनेट भी आपका एक स्मॉल ग्रे कलर का बर्ड होता है, ठीक है, एक चिड़िया होती है छोटी सी, तो ये उसकी स्पीसीज है लिनेट। देन ग्लीमर, ग्लीमर समथिंग दैट इज शाइनिंग, की जो चीज़ चमकती है वो ग्लीमर आप बोल देते हैं। लैपिंग, आई टोल्ड यू द स्ट्राइकिंग साउंड, जो लहरें हैं वेव जो शोर पे स्ट्राइक कर रही हैं, ठीक है। हार्ट स्कोर होता है द इनर मोस्ट पार्ट ऑफ आवर हार्ट, यानी हमारे मन की जो गहराई होती है उसको हम क्या बोल सकते हैं, क्या है यहाँ पे, the innermost part of our heart. So I hope my dear student, you all got the points. Here I tried to describe all the points, all the things in this video. I hope you got all the points, and if still you have any query you can comment me, so that in the next video I'll try to clear all the doubts and all the things, and whatever my that means on what point I was not so much good, I'll try my best in the next video. Till then, you just take care, enjoy, be safe. Thank you.